Yes, sir. Yeah. So Chirag, there are some discrepancies in today's school. Like I am not having my asset, so I have to borrow someone others. So I am currently out of station. That's why Karthik has taken yesterday's session. But I will be taking today's session and will take care of both the session doubt, that is of yesterday's and today's, in next week when we will be meeting, है ना? So that lecture will be a little long after we meet again, मतलब next week, है ना? So please like uh, be with me. Don't lose the flow, and collect your doubts, and then we will resolve those in other session. But if you have any doubts regarding yesterday's session also, then you are feel please feel free to ask those also. So I am going to start today's session. Like, is my screen visible? Yes, sir. Okay. So can you please explain me like what was yesterday's topic, Chirag? So mainly we learned about many different things like that, how to make everything full, caps up, or for uppercase, or how to put everything lowercase, and few more things like that. Then we Hmm. learned about the list, like how if there a whole list, how can I print the like the if there are three parts in the list, how can I print the first list, like the first sorry if Index. yeah, the first index, the second index, the third index, like that. That's all we learned yesterday mainly. So you basically learn about strings and string operations in Python, है ना? Yes, sir. Okay, okay, good. So like now we will be moving forward with advanced versions of it. Like in earlier sessions of mine, I have told you about that how list differs from other type of variables. Like only variables, what they do is like they only store one kind of value inside them, है ना? But what list does is key it is able to store different types of data types and values inside it under a single name, right? Hmm. तो नाउ these list हो गया, डिक्शनरी हो गई, ट्यूपल्स हो गई, collectively we call them as data structures. Data structures are like things that are used to collect data under a single entity या under a single name. तो ये बहुत बेसिक वर्जन हो जाती है डेटा स्ट्रक्चर्स की. बट डेटा स्ट्रक्चर्स में जैसे पाइथन में लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, ट्यूपल्स हो गए एंड स्ट्रिंग्स हो गए, ये सब ऑल दोज थिंग्स. एंड देन इन सी एंड सी प्लस प्लस एरेज हो गई, हैश मैप्स हो गए, मैप्स हो गए. सो दीज ऑल दोज थिंग्स, प्रायोरिटी क्यू एक्सेट्रा, तो दे ऑल कम अंडर डेटा स्ट्रक्चर. कुछ भी कलेक्शन डेटा से रिलेटेड, कुछ भी कलेक्शन विल कम अंडर डेटा स्ट्रक्चर. Hmm. तो both python and data structure used to store collections of data. मतलब they are basically behaving as a bucket, कि under that bucket you can store a large amount of content under the single name. And how these data structures work basically like कि there is a class and you have to store the data of all those students under the class name class 10th. So class 10th is a single variable name, but under that you want to store the student name, their details, their parents name, their address, all those things in a list format or in other format, in dictionary format. So that data is being collected, matlab it is basically reducing the complexity. Instead of maintaining 60 variables for 60 student, what you will do, you will create a single list of whole class 10th, consider it as a attendance register. Under that register you will be putting all the values of those students. So matlab you are collecting the data of all those students under the class 10th instead of storing them individually. क्योंकि like we always try to sort things out कि group identify करना है. Then what you do is like कि okay, red house is this, yellow house is this. So you are grouping the things. Once you started grouping the things, then it becomes very easier to govern those. In programming language, governing means
कि manipulate those values. Like if you want to edit any of the values or you want to perform any of the operations like multiplication, addition, these are very basic operations. So there can be complex operations also. If you want to perform those operations on a large set of data, then data structures plays a very critical role. Even in industry, data structures are must. That if you are having a thorough knowledge of data structures, then it is very easy to crack coding problems that are being asked in interviews. So nobody is going to ask you ki do a plus b or multiply a into b and now print hello world. They always give you a problem like ki, okay, these are the students that are being present in class 10th, and I want you to basically analyze या फिर categorize the student based upon their marks कि like how many average students are there in a class, how many like outstanding students are in there in the class, and how many students are getting basically failing grades in the class. So you are now categorizing the student कि you have made three groups, and under those three groups you want to calculate the average of the class. Due to by calculating the average, the higher authorities are easily able to maintain like कि, basically what is the performance status of all these students, right? So this is how data structures works. So in data structure there is a data structure name list. It is mutable. Mutable means the value of a list can be changed as per your requirements, है ना? So like you are having a list. In the example, as you can see, 1 comma 2 comma 3, and then there is a word hello. Now you want कि जो मेरा zero index पे value है 1, I want to modify it. So you can simply reassign the value of it, है ना? And then it will get modified. Or you can perform a multiplication operation by accessing this index 0, like L of 0. जैसे कि कल you might have seen. So just multiply it with 2, then it will become 2 into 1 equal to 2. So the values of list can be changed. Tuples are immutable. Like once you have defined the values in the tuple na, like 4, 5, 6, 7, hello, है ना? So these square brackets represents a list. These circular brackets represent a tuple. So once you have defined the value of tuple, then you cannot modify these values. Means if you want to change this 4 value to other value, it will not be possible. तो इसको इस तरीके से मान लो कि like once you have saved a number in it, then it becomes indestructible. Okay, like nobody can alter the values of a tuple. Now if we don't if we cannot change the values of something, then what is the use of it? The use of tuple will come when there is might be a case where you need to preserve the authenticity of data, that no one, even the programmer who is writing the program, should not be able to modify the value of a particular thing. There these tuples can be used. This is one of the use cases. There can be other use cases also. So both support indexing slicing and iteration. So both these data structures like list हो गया, tuple हो गया, so they support indexing. Indexing means कि like everything in programming, whether it is Python, C, C++, or any of the other languages, everything has a starting with 0. So at this one where 1 is written, there is an index. Index you can consider it as a basically seat in a class, है ना? कि you have a table chair in class on which you sit. So 1 is sitting over that particular index. So here index is 0 of this 1, है ना? Then 2 is sitting at index 1. Then 3 is sitting at index 2, and then this hello, total whole this hello world, पूरा का पूरा word, है ना? It's sitting on index 3. So it is 0, 1, 2, 3. ठीक है? So like key now they are sitting on their respective places, and their respective places are 0, 1, 2, and 3. So whenever you try to access the index 3, key L of 3 we say key L square brackets, and then inside those square brackets we will write 3. So this hello world will be basically you will be accessing this hello world, this particular seat that is 3. You will be able to access this placeholder.
Similarly, the tuple also support the same. Like if you want to access this hello, then you can simply say कि t. Then क्योंकि this इसका index क्या रहने वाला 4, because 4 is sitting on 1 0, 5 is sitting on 1, 6 is sitting on 2, 7 is sitting on 3, and this hello word is sitting on 4. So you can access through that way also. Now what slicing and iteration means? Iteration is like कि now you are able to first see the iteration. Now iteration means कि you are able to access one index at a time. Suppose I want to print L of 0. L of 0 means L square bracket 0. Okay. So now if I want to print this L0, then this one value will be getting printed. But I want कि मेरी पूरी list की values को print करना है. So then there is an option for you कि like you can simply print the whole list, like print L, then it will get printed. But while we were seeing or going through loops na, there I have shown you कि like you can access the index of the list, print the index of the list while putting in the for loop. If you might have remembered, like before I in range L है ना, और I in L करके जो अपन print करते थे, तो then what was happening there was कि उसकी एक एक वैल्यू बढ़ती चली जाती थी. तो पहले वो जीरो इंडेक्स वाली प्लेस को एक्सेस करता था, देन इट विल एक्सेस वन वाली इंडेक्स वाली प्लेस को, देन इट विल एक्सेस जो सेकंड वाली इंडेक्स वाली प्लेस है. दिस इज हाउ द एक्सेसिंग वाज बेसिकली वर्किंग एट दैट टाइम ना. तो सिमिलरली iteration is nothing, it is a name that is given to that process कि जहाँ पे हम list का each and every element access कर रहे हैं, है ना. And then we are either we are manipulating it. Manipulating means we are performing any of the arithmetic calculations or any of our logic, है ना. But we are accessing the list one at a time till the list ends, जहाँ तक list की value end नहीं हो जाती, है ना. In this case we will be accessing it's for all of the four values. So when we are applying the for loop na to access these values, that same thing is being defined as key iteration. उसी को हम iteration बोल देते हैं. Iteration is nothing, just putting the for loop and accessing the elements of the list one at a time. Now slicing is basically like whatever you slicing, like you are eating a fruit, है ना, then you are slicing the fruits, cutting into parts and then eating it. Similarly slicing works in this also कि like you are basically cutting the list one at a time. Like कि आपने क्या काम किया कि ये list के elements हैं, and then these elements you are accessing in two ways. या उसको तुम्हें करना है कि लाइक मुझे तो बस वन और टू एलिमेंट पे ही काम करना है, आई डोंट वांट टू वर्क विद थ्री एंड हेलो दिस वर्ड. तो उसके किसी एक पार्ट पे काम करना है ना, देन स्लाइसिंग इज रिक्वायर्ड देयर. तो स्लाइसिंग इज हाउ स्लाइसिंग इज डन, वी विल शो इट इन द एग्जांपल्स आल्सो, बट स्लाइसिंग इज दैट थिंग ओनली. Now let's start with the list basics. So creating a list, how to create a list, we have seen it earlier as well. Ki just you have to write the name of the variable or the list that you want to create, and then define the values that are with you, right? So this is how basically we access the list. So create a list. So and then we will print marks, and then this example I have shown you in the earlier lectures also while we were studying loops. So that is how the list is being created. So as soon as you define square brackets in front of a variable, the list is created by Python by default, है ना. तो स्क्वायर ब्रैकेट्स को देखते ही पाइथन समझ जाएगा कि ओके दिस इज अ लिस्ट एंड आई हैव टू क्रिएट अ लिस्ट. यू डोंट हैव टू गिव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन टू द पाइथन कि लाइक प्लीज क्रिएट मी अ लिस्ट, प्लीज क्रिएट मी अ लिस्ट. नो, just write the variable and then put the square brackets and the list will be created for you there. Now how to print the list? Just print marks and then the list will get printed. Now the list can hold multiple data types as I have told you earlier, है ना, and mutable होती है. Items can be added, removed or changed. It depends on you. एक बार tuple में आपने अपने elements add कर दिए, then they cannot be either deleted or changed, है ना. So these are the properties of the list. Then
about tuples, creating a tuple like there is a student whose name is John, his age is 21 years and then BTech. तो ये जो 3 वैल्यूज हो गए, ये कभी जॉन के बारे में चेंज नहीं होंगी, राइट? कि उसकी अभी एज 21 है तो 21 ही रहेगी, आप उसको 50 नहीं कर सकते। अगर उसको बीटेक पढ़ रहा है तो आप बीटेक चेंज नहीं कर सकते, है ना? तो यू वांट कि ये वैल्यूज चेंज होनी ही नहीं चाहिए, कि दीज आर द परमानेंट वैल्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि आज के लिए, करंट के लिए, है ना? तो आपने you have put student, then you have used these semicircular braces, and these will define ki Python this is a tuple, please create a tuple of John having value 21 in BTech। जैसे आप प्रिंट करोगे तो ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी उसके अंदर की। इम्यूटेबल होती है, कैन नॉट बी मॉडिफाइड, वैल्यूज कैन नॉट बी मॉडिफाइड। फास्टर एंड मेमोरी एफिशिएंट होती हैं, कॉमनली यूज्ड फॉर फिक्स्ड डेटा, है ना? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि द डेटा दैट यू वांट कि दैट शुड नॉट बी चेंज, और वो हमेशा सेम ही रहने वाला है। एक आदमी का नाम अगर सेट हो गया है कि इसका नाम XYZ है, तो देन एवरीवेयर हिज नेम विल बी XYZ। इट्स नॉट अप टू हिज विल कि आफ्टर 30 years ऑफ हिज एज ही वांट्स कि मेरा नाम तो XYZ नहीं होना चाहिए, आई शुड बी हैविंग अ डिफरेंट नेम, है ना? दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। ट्यूपल जो होती हैं फास्टर होती हैं और मेमोरी एफिशिएंट होती हैं। व्हाई? बिकॉज एक तो देखो इसमें क्या कहते हैं, सिंपल सा लॉजिक रहता है, फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, चेंज नहीं करना होता। तो मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि जो ये मतलब ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा और फास्ट है इसकी प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि इस पर ना आप मैनिपुलेशन कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। ये तो सिर्फ एक चीज होगी कि आपने यू हैव फीड इट टू द सिस्टम एंड देन द सिस्टम विल रिमेंबर इट। नाउ हाउ इंडेक्सिंग वर्क्स। तो आई टोल्ड यू कि इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स 0। जो भी चीज स्टार्ट होगी वो इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होगी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग। तो हियर लाइक मार्क्स 85 का इंडेक्स 0 होगा। जो मैं बोलता हूँ ना मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 0 का मतलब यही हो जाता है जो लाइक यू कैन सी इन द प्रिंट स्टेटमेंट कि मार्क्स ऑफ 0 मींस मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर 0। तो यू आर एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर इंडेक्स कि 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, पाइथन प्लीज प्रिंट दैट वैल्यू। तो पाइथन विल प्रिंट इट एज 85। अब एक चीज और होती है इसके अंदर, ठीक है, इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव हो गया हर चीज का उल्टा, है ना, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव मीन्स अपोजिट ऑफ दैट। तो अब इसमें क्या होगा, अभी अपन इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे थे 0 से, तो यानी 85 वाली प्लेस का जो इंडेक्स रहेगा वो 0 रहेगा, लेकिन नेगेटिव है। तो यानी कि अब स्टार्ट से इंडेक्सिंग शुरू नहीं करेंगे अपन, इंडेक्सिंग का जो क्राइटेरिया है वो लेंगे बैक से, एंड से, जहाँ 88 लिखा हुआ है। तो 88 का क्या इंडेक्स रहता है, -1। 92 का क्या रहेगा, -2। यानी एक एक डिक्रीज होता चला जाएगा। डिक्रीज के लिए आप क्या करते हो, हर चीज में माइनस करना पड़ेगा, राइट? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैथ का बेसिक लॉजिक है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब -1 में -1 करोगे इट विल बिकम -2। तो 92 का इंडेक्स हो जाएगा -2। -2 में -1 करोगे तो इट विल बिकम -3। तो 78 का इंडेक्स हो जाएगा -3। -3 में -1 करोगे तो इट विल बिकम -4। तो 90 का इंडेक्स हो जाएगा -4। -4 में -1 करोगे -5। तो 85 का इंडेक्स हो जाएगा -5। तो नेगेटिव इंडेक्स हमेशा -1 से शुरू होंगे, लास्ट से शुरू होंगे और माइनस माइनस होता चला जाएगा उसमें, ठीक है। अब 85 का -5 इज इक्विवेलेंट टू 0। मतलब अगर आप मार्क्स ऑफ 0 प्रिंट करते हो तो भी वैल्यू 85 प्रिंट होगी। मार्क्स ऑफ -5 करते हो यानी मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर -5, तो -5 वाला जो इंडेक्स है वो 85 का है। तो देन जो वैल्यू प्रिंट होगी वो तब भी 85 ही प्रिंट होगी। ये आपके पास ऑप्शन रहता है कि आइदर यू वांट टू यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग और यू वांट टू यूज पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग अगर यूज करनी है तो देन इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद 0। नेगेटिव इंडेक्सिंग अगर यूज करनी है तो देन इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद -1। बस ये चीज आपको याद रखनी है, एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सी इंडेक्सिंग यूज करनी है। समटाइम्स इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन ऑल्सो कि नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर लो, तब आपको जो डिफाइंड है उसी को यूज करना होगा। बट इफ इट इज नॉट डिफाइंड देन यू आर फ्री टू यूज एनी ऑफ द इंडेक्सिंग, बोथ आर वैलिड। यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग टू एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम द एंड।
ठीक है, जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव इंडेक्सिंग लास्ट से शुरू होगी, देन यू आर एबल टू एक्सेस द जो एलिमेंट्स जो मतलब उल्टे एलिमेंट्स एक्सेस करोगे, लास्ट से फर्स्ट की तरफ आओगे नेगेटिव इंडेक्सिंग में। नाउ स्लाइसिंग इन लिस्ट एंड ट्यूपल्स, ठीक है, स्लाइसिंग मतलब उसको काट देना, उसके एक पार्ट पर्टिकुलर पार्ट एक्सेस करना, ठीक है। तो हाउ स्लाइसिंग इज बीइंग डन, स्लाइसिंग में क्या होता है कि यू बेसिकली टेल पाइथन, पता है पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको बस समझाना है, यू डोंट हैव टू वरी कि वो स्लाइसिंग कैसे करेगा, ठीक है, कि लाइक हाउ व्हाट लॉजिक इज बीइंग अप्लाइड, कि हाउ पाइथन इज डूइंग द स्लाइसिंग बिहाइंड। यू जस्ट हैव टू टेल कि मुझे यहाँ से यहाँ तक स्लाइसिंग करनी है, ठीक है, मुझे ये फ्रूट है इसका इतना पीस कट करना है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, एक्सट्रैक्ट अ सबसेट ऑफ एलिमेंट्स, सबसेट ऑफ एलिमेंट्स मतलब वही हो गया कि पार्ट ऑफ अ बिगर थिंग, है ना, कि मार्क्स 1, अब बीच में एक कोलन लगा देते हैं, देन 4, ठीक है। अब क्या होता है कि जो 1 होता है ना, इट डिफाइंस द स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब कि कहाँ से स्लाइसिंग करनी है, किस किस पार्ट को निकालना है, ठीक है। जैसे आपने जब वीडियो एडिटिंग करते हो वहां पे एक प्री कट कट वाला ऑप्शन होता है ना, कि उस तुम पर्टिकुलर वीडियो में से पार्ट कट करके निकाल लेते हो। सिमिलर थिंग इज हेयर ऑल्सो, कि जो पहला वाला इंडेक्स ये होगा नंबर, जैसे 1 हो गया, तो यानी कि अपन पाइथन को बोल रहे हैं पाइथन, मार्क्स एक लिस्ट है, उसमें इंडेक्स 1 है जिससे तुम्हें स्टार्टिंग करनी है, और तुम्हें 4 तक जाना है। अब ये 4 तक जाना नहीं होता, 4th एक्सक्लूडेड रहता है, जैसे हमने बताया था ना लूप्स में ऑल्सो, कि लास्ट वाला इंडेक्स कभी वो एक्सेस ही नहीं करता, वो एक्सक्लूडेड रहता है उसके बीच में, यानी 4 से नीचे नीचे। तो कौन से इंडेक्स हो गए 4 से नीचे नीचे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 1 2 3 पे देखो कौन कौन सी वैल्यूज है मार्क्स के अंदर। जो इंडेक्स 1 है उस पे 90 है, इंडेक्स 2 पे 78 है, और इंडेक्स 3 पे 92। तो ये 3 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी इधर, ठीक है। तो लाइक कि 4 से एक्सक्लूडेड, 4 जो है एक्सक्लूडेड रहने वाला है, तो ऑल द वैल्यूज बिलो 4 विल बी गेटिंग प्रिंटेड, कि लाइक बिलो 4 कौन कौन सी वैल्यूज थी, 90, 78 एंड 92। अगर इंडेक्सिंग देखो, इसे ना पेन पेपर पे लिख लिया करो, कि पहले तुमने लिस्ट लिख ली एंड देन राइट द इंडेक्सेस बिलो दीज नंबर्स, लाइक 85 के नीचे 0, 90 के नीचे 1, 78 के नीचे 2, 92 के नीचे 3 और 88 के नीचे 4। इस तरीके से कर लोगे तो समझने में आसानी रहती है। अब अगला वाला एग्जांपल देखो, कि मार्क्स अपन ने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं बताया पाइथन को, कोलन दे दिया और 3 दे दिया। जब कभी भी whenever you are not defining the static index, by default starting index is 0, ठीक है। whenever you are not defining explicitly python ki python this is the starting index you should take, always the starting index will be 0। तो हमेशा जब भी इन स्लाइसिंग शुरू होगी वो 0 से होगी। अब अपना क्या है, अब ये 0 दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इट्स बाय डिफॉल्ट। अपन ने बस पाइथन को बोल दिया कि 3 वाले इंडेक्स से नीचे नीचे के मुझे सारे एलिमेंट्स चाहिए। नाउ पाइथन विल सी कि वेयर इट हैज टू स्टार्ट, तो पाइथन विल स्टार्ट फ्रॉम 0। 0 पे गया है 85, देन इट विल इंक्रीज द 1, इट विल गो टू 90, 90 1 वाले इंडेक्स पे गया 90, 2 वाले इंडेक्स पे गया 78। तो जो वैल्यूज प्रिंट होंगी वो होंगी 85, 90 एंड 78, ठीक है। इसी तरह से अब देखो यहाँ अपन ने क्या बोला, -3, और -3 के बाद अपन ने डिफाइन नहीं किया कि एंडिंग इंडेक्स क्या होना चाहिए। जब कभी भी डिफाइन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो हमेशा लास्ट वाले इंडेक्स से रहना है, मतलब लास्ट तक जाना है उसको। -3 के वैल्यू क्या रहने वाली है, अब लास्ट से इसकी इंडेक्सिंग करो, 88 की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, इंडेक्स की वैल्यू रहेगी, वो रहेगी -1, 92 की -3, वो -2, और 78 की -3। अब अपन ने पाइथन को बोल रखा है कि -3 से वैल्यू प्रिंट करना स्टार्ट कर देना, ठीक है, कि हे पाइथन यू हैव टू स्टार्ट प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स एज सुन एज यू द -3 इंडेक्स अकर्ड, है ना, कि एज सुन एज यू -3 इंडेक्स इज विद यू, प्रिंट दैट वैल्यू, एंड आफ्टर दैट प्रिंट ऑल द वैल्यूज टिल द एंड। तो -3 पे लाइक -3 इज हैविंग 78, 78 प्रिंट हो गया, then it will do -3 -1, it will become -4, -4 की वैल्यू 90 हो गई। ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 92 वैल्यू नहीं आई है, एक सेकेंड, -3 ट्रेवर्सिंग इसकी इधर हो रही, +1 हो गया,
है ना। स्लाइसिंग में जो होता है मतलब जो अपन उसमें कर रहे थे ना कि लाइक इंक्रीमेंट होता है स्लाइसिंग में, जो अपन इंडेक्सिंग कर रहे थे -1 वाली, जो मैंने तुम्हें लास्ट में अभी पिछली बार बताया था, मतलब अभी थोड़ी देर पहले आई हैव टोल्ड यू कि -1 करोगे तो वो -2 हो जाएगा। वो इंडेक्सिंग आप इंडेक्स हाउ यू हैव टू फाइंड इंडेक्सिंग, वो तरीका था, ठीक है। लेकिन स्लाइसिंग में क्या रहता है, बस स्लाइसिंग में ये चीज डिफरेंट है, ठीक है। याद रखना फॉर लूप में भी इंक्रीमेंट होती है वैल्यू, वैसे और लूप्स में भी हमेशा +1 होगी वैल्यू, ठीक है। स्लाइसिंग +1 के थ्रू उसको ट्रेवर्स करती है। तुम आपने ये इंडेक्सिंग से -1 करके करके पता तो कर लिया कि इसके इंडेक्स क्या है, कि लाइक 88 का -1 है, 92 का -2 है, 78 का -3 है, 90 का -4 है, 85 का -5 है। नाउ जब भी स्लाइसिंग स्टार्ट होगी देन इट विल ऑलवेज ऐड 1 वैल्यू टू इट, है ना। तो -3 से स्टार्टिंग करी यानी 78 से स्टार्टिंग हो जाएगी उसकी। 78 की -3 वैल्यू थी तो वो प्रिंट होगी। -3 + 1 क्या हो गया, -2। -2 पे वैल्यू थी 92, वो प्रिंट होगी। -3 अब जो वैल्यू है अपनी करंट वाली वो है -2। -2 + 1 जब करेंगे अपन तो वैल्यू हो जाएगी -1। -1 पे वो व्हाट इज द वैल्यू, 88, ठीक है। तो 88 प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा स्लाइटली इट इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग बट ट्राई टू डू इट ऑन पेन एंड पेपर, देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो स्लाइसिंग रिटर्न्स अ न्यू लिस्ट और अ ट्यूपल। नाउ रिमेंबर कि जो ये चेंजेस हो रहे हैं, राइट, तो all these changes are not being done in the original list. From the original list a new list or tuple is being created by taking part from that particular list. उस पर्टिकुलर पार्ट की वैल्यूज को कॉपी करके दूसरे लिस्ट में कॉपी हो जाती हैं वो, ठीक है, न्यू लिस्ट में। तो पुरानी लिस्ट आपकी ये नहीं है कि लाइक इफ यू हैव स्लाइस्ड द वैल्यूज ऑफ 98, 78 एंड 92, ये वैल्यूज आपने निकाल ली तो लिस्ट में अब बस 85 और 80 बची। इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल लिस्ट विल बी कंटेनिंग ऑल द वैल्यूज, the values that you have sliced will get stored in a new list, not in the original list. तो ओरिजिनल लिस्ट कहीं से कहीं तक भी मॉडिफाई नहीं होगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि ओरिजिनल वैल्यू विल रिमेन सेम, वी आर नॉट टेकिंग पार्ट आउट ऑफ दैट लिस्ट। हमने जो उसका पार्ट था उसको कॉपी कर किया है, जिसको अपन स्लाइसिंग बोल देते हैं। Now there are certain operation with the list that are associated. Append add an element to the list कि like अभी हमारी लिस्ट में 5 एलिमेंट्स थे and we want to add one more number to that particular list. और उसके बाद अपने एलिमेंट कितने हो जाएंगे उस लिस्ट के अंदर, our element counts will get increased to 6. तो marks dot append ये फॉर्मेट रहता है। You have to write this marks dot append 95, तो उस लिस्ट के एंड में, ठीक है, जो एंड वाला इंडेक्स था, यानी कि अब एक इंडेक्स 5 क्रिएट हो जाएगा इंडेक्स 4 के बाद, और उस वाले इंडेक्स 5 पे 95 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। रिमूव एन एलिमेंट, अगर लिस्ट से कोई एलिमेंट रिमूव करना हो, ठीक है, वी हैव टू रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, देन यूज दिस फंक्शन। फंक्शन ये दे आर प्री बिल्ड इन द पाइथन, defined in the Python itself. You don't have to write those or the logic of those. You just have to use these functions as it is. We will see what are functions in later sessions. But for now, remember this, that function contains a predefined logic behind it. कि एक पूरा का पूरा लॉजिक लिखा हुआ है and that logic is being converted to a this single word that is remove, है ना। तो दिस इज अ फंक्शन, और फंक्शन की पहचान होती है कि लाइक आफ्टर देयर नेम दीज सेमी ब्रैकेट्स विल कम, लाइक दे हैव ना 95 के पहले ये जो सेमी सर्कुलर ब्रैकेट्स है ये, तो लाइक रिमूव सेमी सर्कुलर ब्रैकेट, ये फंक्शन हो गया। फंक्शन रिमूव 78। अब ये अपने आप इट विल सर्च थ्रू द लिस्ट एज सून एज 78 वैल्यू अकर, पहली सबसे 78 वैल्यू जो आएगी उसको ये लिस्ट से डिलीट कर देगा, इट विल डिलीट इट फ्रॉम द लिस्ट, है ना, और वो रिमूव हो जाएगी। अगर अपन को वी हैव टू शॉर्ट द लिस्ट, देन यूज मार्क्स डॉट शॉर्ट। शॉर्टिंग मींस कि या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी जैसे कि देखो कि 85, 90, 78, 92, 88 है, ठीक है, तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, रेंडमली अरेंज्ड है ये एलिमेंट। लेकिन इफ यू आर यूजिंग दिस शॉर्ट फंक्शन ना, तो दे विल गेट अरेंज आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में होंगे, डिसेंडिंग में करना हो तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है। देन लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिस्ट। कि जैसे कि अभी अपनी लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं,
इफ यू पुट दिस की लेंथ ऑफ द एलिमेंट कि ये लेंथ फंक्शन यूज करा, लिस्ट के नाम उसके अंदर डाल दिया, ठीक है, तो होगा क्या, इट विल कैलकुलेट द काउंट ऑफ द एलिमेंट्स, वो 5 प्रिंट कर देगा, ठीक है, काउंट प्रिंट करेगा। अब अगर आपने अपेंड फंक्शन यूज किया एंड यू हैव अपेंडेड 95 टू इट, अब उसके एलिमेंट 6 हो गए, एंड देन यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगेन, तो अब उसकी जो लेंथ आएगी ना, इट विल बिकम 6, ठीक है, तो उस एलिमेंट्स को काउंट कर रहा है। ट्यूपल ऑपरेशंस ओनली सपोर्ट्स लिमिटेड ऑपरेशन। ट्यूपल अपन ज्यादा यूज भी नहीं करते हैं, दे आर नॉट हाईली यूज्ड आइदर इन प्रोग्रामिंग और इन कोडिंग ऑल्सो, बट सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं वेयर ट्यूपल्स को यूज करना पड़ता है टू एज पर द केस सिनेरियो, बट ट्यूपल जो है ये समझ लो डोरमेंट ही रहते हैं, दे आर नॉट यूज्ड वाइडली, ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो नॉट सी ट्यूपल्स वेरी फ्रिक्वेंटली गेटिंग यूज्ड एवरीवेयर। तो ट्यूपल ओनली सपोर्ट्स लिमिटेड ऑपरेशन, इसलिए ट्यूपल पे ज्यादा ऑपरेशन भी अपन परफॉर्म नहीं करते हैं सिंस दे आर इम्यूटेबल। जैसे कि टी इक्वल टू 10, 20, 30, 20 है ना, ये ट्यूपल्स के एलिमेंट हो गया, प्रिंट करना है 20, तो लाइक प्रिंट टी डॉट काउंट 20, तो 20 ये क्या काउंट करे, काउंट फंक्शन क्या करता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की अकरेंसीज को काउंट करता है। जैसे इसने 20 बोला, तो इट विल चेक कि 20 कितनी बार आया ट्यूपल के अंदर, ठीक है, तो 20 आया है 2 बार, तो उसने 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब एक फंक्शन होता है इंडेक्स फंक्शन, अगर टी डॉट इंडेक्स प्रिंट कराओगे 30 का, तो वो 30 का इंडेक्स प्रिंट कर देगा, ठीक है, तो 30 का इंडेक्स क्या है 2, तो 2 प्रिंट हो गया। तो ये फंक्शंस हैं पहले से, देयर आर मैनी मैनी मोर फंक्शंस ऑफ पाइथन, ये तो बस ये समझ लो कि लाइक 2-3 फंक्शंस ही हैं, दे आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन प्रेजेंट, तो आप उनको यूज कर सकते हो, एंड देन बट दीज आर द कॉमनली यूज फंक्शन। you will be like there is a problem that I was facing at that time, कि we don't know which function to use when, but that thing will start coming to you on your own once you start doing competitive programming on platforms like LeetCode and etc na. So once you start doing it, there you will face problems, then you have to search the solution. Once you search the solution, you will find out कि हाँ ये function this function can be used in this way. After that वो तुम्हारे प्रैक्टिस में आ जाएगा, then you will be able to remember कि अगर I have to solve this particular type of problem, then I have to use this particular type of function. तो ट्यूपल कैन बी कन्वर्टेड टू लिस्ट फॉर मॉडिफिकेशन, टाइप कास्टिंग, याद है बट वी हैव यूज टाइप कास्टिंग वर्ड अर्लियर, कि अगर फ्लोट की वैल्यू को फ्लोट में करना हो तो टाइप कास्टिंग यूज कर लो, इंट वगैरह, है ना। तो मतलब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं कि ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो टी इक्वल टू लिस्ट टी हो जाएगा। जैसे अपन ये लिखेंगे, ये लिस्ट वाला फंक्शन ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, फिर अपन उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। लिस्ट पे ऑपरेशन कर लोगे, बट यू कांट डू एनी ऑफ द ऑपरेशंस ऑन ट्यूपल। तो की टेक अवेज क्या है आज के अपने सेशन में से, कि लाइक लिस्ट्स आर म्यूटेबल, ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल, है ना, बोथ सपोर्ट इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड आइटरेशन, ये भी देख लिया अपन लोगों ने। लिस्ट आर आइडियल फॉर डायनेमिक डेटा, ट्यूपल्स फॉर फिक्स डेटा। अब ये डायनेमिक डेटा फिक्स डेटा क्या हो गया, कि लाइक द डेटा दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, वो क्या कहते हैं, उसको जो अपन वी विल परफॉर्म ऑपरेशंस इन द लिस्ट फॉर्मेट ऑफ दैट, कि अब कोई डेटा हो गया, डेटा कैसे बताऊं मैं, लाइक कि लाइक सन की जो अर्थ से डिस्टेंस है ना, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। मून की जो अर्थ से डिस्टेंस है, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। हमें पता है कि एक महीने में 30 ही दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, बेस्ड अपॉन द मंथ, that is not going to change. There will never be a case scenario जहाँ पे 32 days हो जाएं within a month. तो जो fixed data हो गया, और on which we don't want to perform any of the operation, we want to preserve the authenticity of that particular data, ठीक है, वहां पे हम ट्यूबल्स यूज कर लेंगे। बट दैट द डेटा दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, कि इस बार मेरे मार्क्स इतने हैं, देन आई हैव गिवन द रीटेस्ट, मेरे मार्क्स चेंज हो गए, तो देन दोस चेंज वाले जो मार्क्स हैं, है ना, द अपडेटेड मार्क्स शुड बी रिफ्लेक्टेड इन माय रिजल्ट एज वेल। मतलब द चेंज एट वन प्लेस मींस द चेंज एट द आंसर शीट लेवल
your marks are being upgraded at the answer sheet level and you want कि वो change reflect हो at the result level also. तो रिजल्ट के में भी तो अपन ने कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज किया होगा ना, जब अपन रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे होंगे इस वाले सॉफ्टवेयर में, ऑटोमेटिक रिजल्ट प्रिपरेशन मान लो या डिजिटाइज वाला रिजल्ट मान लो. तो एज सून एज योर मार्कशीट मार्क्स आर गेटिंग अपग्रेडेड एट वन लेवल, योर marks in the result for that particular subject should also get upgraded to the latest marks. तो वहां पे डेटा चेंज हो रहा है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके, तो डायनेमिक डेटा हो गया वो, है ना. ये सिंपल सा एग्जांपल था दैट आई वाज एबल टू थिंक ऑफ राइट नाउ. बट रिमेंबर दिस कि लिस्ट आर ऑलवेज यूज्ड फॉर डायनेमिक डेटा, ट्यूपल्स आर यूज्ड फॉर फिक्स्ड रिकॉर्ड्स दैट आर नॉट गोइंग टू चेंज. Practice makes perfect. Experiment with list methods and slicing. So try to follow that particular example only that I have shown you na 85 wala. So once you first before doing it on your asset, try to do it on pen and paper, using pen and paper. पेन पे एक लिस्ट बना लो, उसके एलिमेंट्स लिख लो, देन राइट डाउन द इंडेक्सेस बिलो इट एंड देन स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ इस इंडेक्स पे ये चीज़ है, इस इंडेक्स पे ये चीज़ है. And then you can pick some of the basic questions, 2 or 3 questions only from over the internet ki list ke basic questions, and then start thinking from that perspective. सिर्फ simple ज़्यादा typical question नहीं लेना है, like addition of number or multiplication of the elements in the list. इस तरीके का कुछ भी क्वेश्चन उठा सकते हो and then you can practice on that particular question. For your assignment, try to create a list to store the student marks and calculate the average. ठीक है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है एवरेज कैलकुलेट करने का, दैट इज एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द मार्क्स. जैसे 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 के 5 सब्जेक्ट्स का टोटल और अपॉन लेंथ ऑफ मार्क्स. लेंथ ऑफ मार्क्स क्या हो गया, कितने सब्जेक्ट्स थे, जैसे 5 सब्जेक्ट्स थे. ठीक है, तो जो एवरेज वाला अपना फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को यूज करना है एंड देन ट्राई टू कैलकुलेट द एवरेज की एवरेज क्या आया. ये जो सम है ये पाइथन का एक फंक्शन है, इट इज यूज टू ऐड थिंग्स. तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर यू कैन यूज दिस सम फंक्शन ऑल्सो, और अगर जैसे 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कर लो टोटल मार्क्स में एंड देन यूज दैट वेरिएबल डायरेक्टली हियर ऑल्सो. यू कैन फॉलो एनी ऑफ द वेज. तो इस लिस्ट क्रिएट करनी है स्टूडेंट मार्क्स की एंड देन ट्राई टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट. लिस्ट में ही 5 सब्जेक्ट के नंबर डालने हैं. ठीक है, तो this is for today's lecture. For any help and support, please contact us here. And thank you for joining today's session. Are there any doubts or questions? Then please feel free to ask. Otherwise, we will wind up today's session. No questions? Okay, thanks everyone for joining today's session. See you in the next lecture. Sure, sir. Thank you. Sir, just a quick question. Sir, I just wanted to know, can you give a small, can I know that what exactly am I going to learn in the next, like the session on the 7th session for just because so that I can just know, I can just go through a bit before coming to the class. Is there any way I can know that? Yeah. I will put that message on the topic name on the group, है ना? Sure, sir. Yeah. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank